already we have discussed till now that what are the various laws of inheritance given by Mendel. The first law, law of paired factors, according to which the pair of the factors is responsible for creating the or for expressing a trait within any of the organism, for expressing any of the traits, right? A pair is important. Okay. Second, we have discussed the law of dominance. In dominance, if a pair of heterozygous condition is there, the dominating is going to express, whereas the recessive gets suppressed. Okay, so this is the second law of Mendel, that is law of inheritance. The third law, that is law of segregation, we have discussed is when the gametes are formed, that is during gametogenesis, the two factors of a trait gets separated. Okay, they get separated and they are then individually, you can say, given to the next generation for the formation of the new organisms, है ना? So that is a law of segregation. एक बात याद रखना, जब भी आप इसमें terms use कर रहे हो, you have to be particular with the terms. If you are using Mendel's term as factors, you have to write it as trait. Factors are responsible for trait. Okay, but if you are using the term genes, then you can write it along with it the characters. ठीक है, तो ये जीन करेक्टर, अलील के साथ करेक्टर या फैक्टर के साथ ट्रेड, ये ध्यान से थोड़ा यूज करना है इन टर्म्स को. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन विच वी हैव सेड that there is the two factors of two different traits, they are not responsible, they are not you can say interlinked with one another, but they are all independent and they can be transmitted to the next generation independent of one another. They are arranged in such a manner that they are transmitted to next generation independent of one another. So these are the four laws. Along with these four laws, because we have told that there are certain of the exceptions. Exceptions भी आती हैं जिसकी वजह से हमने कैंसिल कर दिए थे कुछ लॉज जो है वो आज मॉडर्न जेनेटिक्स में नहीं माने जा रहे. वो सारे मॉडर्न जेनेटिक्स में ये लॉज को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है. दैट इज बिकॉज मोर ऑफ द स्टडीज वर मेड ऑन दीज laws when these were all given to you can say common public. The people, they were more involved in this because they were all getting very much influenced by the work of Mendel. That is why he was also named as or regarded as फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना. तो उनके वर्क से बहुत ज़्यादा लोगों को और अच्छे से एक और फील्ड मिल गई और दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. एंड व्हेन दे वर्कड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज मेंडल ने तो ये स्टार्ट किया था ना अपना एक्सप्रेशन डालना कि एक पी प्लांट के ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया और कंक्लूजन्स भी कर दिए. नो डाउट वो सक्सेसफुली हमने मान भी लिया और चलते भी जा रहे हैं. पर जब उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया गया तो एक्सेप्शंस आ गई इन लॉज की. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की सबसे पहले एक्सेप्शन आप लोगों ने पढ़ी है. व्हाट वाज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस? That is, there are not just a pair of traits, a pair of factors that which is responsible for a trait. It can be more than a pair also. That is, it can be a triplet, it can be a quadruplet. तो कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें ज़्यादा काउंट ऑफ जीन्स भी प्रेजेंट हो सकता है. सो अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द करेक्टर, है ना. तो वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का हमारे पास सॉरी पेयर्ड फैक्टर का एक्सेप्शन. Coming to the next, that is exception to the law of dominance, that is incomplete dominance. So this is first number one exception to firstly we started with this topic while we were studying the law of dominance, but there we could not complete it because हमने तब तक monohybrid cross पढ़ा नहीं था. ठीक है, तो पूरा हमने कंप्लीट इसलिए नहीं आपको करवाया. अभी आप monohybrid cross पढ़ चुके हो. Now we can complete it thoroughly with the ratios and everything. So coming to the first exception, that is an exception to the law of dominance, जिसमें ये बोला था कि अगर दो जीन्स, पहली तो बात ये है कि इन्होंने बात हमेशा करी है किसी एक ही करेक्टर को लेके. आपको याद है हमने जो 7 करेक्टर्स, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ऑफ पी का भी जो टेबल बनाया था, उसमें भी हमने एक तरफ करेक्टर लिखा था दैट इज स्टेम हाइट, फिर डोमिनेंट लिखा टॉल, फिर लिखा रिसेसिव दैट इज द ड्वार्फ वन, है ना. हमने एक ही करेक्टर के दो दो डोमिनेंट और रिसेसिव वाले फीचर्स पढ़ लिए. ऐसे ही सातों करेक्टर्स के लिए आपने डोमिनेंट और रिसेसिव फीचर्स पढ़ लिए because he was working on the thing that which is actually going to be involved in his experiments. मतलब उन्होंने हमें जो प्रोवाइड किया, हम ये कह सकते हैं जो नॉलेज हमें दिया, जो पब्लिक को दिया, वो नॉलेज सिर्फ उतना का था जिससे उनके एक्सपेरिमेंटल व्यूज आए. बाकी इधर उधर क्या हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सारे ट्रू तो होते नहीं है, सारे 100% सक्सेसफुल तो होते नहीं है, तो बाकी इधर उधर क्या हुआ उनके बारे में डिटेल्स कोई नहीं हमें प्रोवाइड करेगी. तो वहाँ पे अगर हम करेक्टर्स की ही बातें करें और उनके ट्रेट्स की बातें करें, जैसे हमने बोला कि स्किन कलर जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द मोर देन 2
जीन्स और मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनमें बहुत सारे और भी अलील्स इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने उनकी बातें ही नहीं करी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जीन्स अलील्स इन चीज़ों की बात नहीं करी, सिर्फ उतना बताया जिससे उनके अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो 100% प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसी एक्सेप्शंस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्लांट ही एक लिया था, दैट इज अ पी प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा लिया हो, लेकिन उन्होंने जो हमें कंक्लूजन दी वो सिर्फ पी के 7 करेक्टर्स के बेसिस पे दे खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नए प्लांट्स हैं और नई एक्सेप्शंस हैं जो इन लॉज के लिए लगी हैं, एंड हेंस वी हैव डिलीटेड दीज लॉज, दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स में ये लॉज कैंसिल हो चुके हैं, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों कैंसिल हो चुके हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज काउंटेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज काउंटेड एज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस इज मेंशन्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आई गेस वो देख लेना। जो भी आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, यू हैव टू क्रैम दैट, राइट। Coming to this incomplete dominance, so the example of this was dog flower, the dog flower or the snapdragon or the antirrhinium. तो ये जो plant है that is giving antirrhinium, that shows the two colored flowers, okay। सबसे पहले ये दो कलर के flowers हमें show करता है। What are the two types of or the two colored flowers, the two traits which are visible in the generation? They are, number one, it is red, and secondly it is white colored flowers, okay। in a generation if we see that हमें क्रॉस बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आपने उसका बनाया था मोनोहाइब्रिड का, कंसिडरिंग वन करेक्टर एट अ टाइम, तो हमने सेम वैसा ही बनाना है। so this is the parent which is pure dominant, that was the first step of Mendel. This is the parent which is pure recessive, that is a selection of pure breeds, pure dominant, pure recessive. Now when these two are crossed, further, the law of segregation says that the gametes should be produced and all the factors get segregated when it is the formation of the gametes is taking place. So this is capital R, small r, small r, है ना। अब नेक्स्ट आना चाहिए F1 जनरेशन में फर्टिलाइजेशन से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से इनका फ्यूजन। और अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बोला था कि जब एक पेयर बनेगा हेट्रोजाइगस तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है, दैट इज डोमिनेटिंग जीन जो है दैट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। बट हियर there was an exception, just because in F1 generation the flowers that were obtained, they were phenotypically neither red nor white, they were all showing a third color which was pink, ठीक है। तो ये पिंक कलर जो है वो शो हो रहा है और दोनों अपना हाफ हाफ एक्सप्रेशन जो है वो डाल रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि डोमिनेटिंग जीन जो है वो पूरी तरह से एक्सप्रेशन नहीं दे रही, ठीक है। इट इज नॉट शोइंग द फुल एक्सप्रेशन। जब आप इसको डिफाइन करते हैं, यू जस्ट सिंपली से सो दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 100% एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, जिस वजह से इसने हाफ एक्सप्रेशन देने की वजह से पिंक जो है वो फिनोटाइप प्रोवाइड किया इन F1 जनरेशन। Further, what is the next step according to Mendel? That is to obtain the next generation in continuation, just to see that whether this was the only character feature कि हमारे पास तीन इसी तरह से फीचर्स आ रहे हैं, और does it match the phenotypic and genotypic ratios provided by Mendel? जो मेंडल ने हमें एक ग्राफ दिया, ये एक पूरा क्रॉस दिया, क्या ये उसकी रेशियोज के साथ मैच करता है, ये भी हमें चेक करना था। तो हमने क्या किया, रेज किया सेकेंड जनरेशन आफ्टर दिस, दैट इज बाय सेल्फिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स क्या आएंगे, randomly selected are capital R small r and capital R small r. Now again the next step, that is of the gametes. So when the gametes are being produced here, what is going to take place? Segregation. Segregation takes place, capital R small r. After this F2 generation, now F2 generation when obtained, this was capital R's combination, then you can make a Punnett square, you can also show it by the line combinations, okay। आप इस तरह भी शो कर सकते हो लाइन से भी,
और आप पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, नहीं? तो दिस इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पेयर्स बने। अब अगर हम यहाँ से इनके फिनोटाइप्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये रेड आएगा, ये रेड रेड नहीं है। मतलब इस जनरेशन में पॉसिबिलिटी क्या हुई कि आउट ऑफ 4 ऑर्गेनिजम्स 2 वर हैविंग पिंक, 1 वाज हैविंग रेड एंड 1 वाज हैविंग व्हाइट, and this is the only cross where phenotypic and genotypic ratios are same. आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, construct a cross where phenotypic and genotypic ratios will be same, and the students they get confused. अब ये कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएंगे, ये कैसे सेम आ सकती है ये। अब यहाँ पे आपको ये सेम नजर आएगी, कैसे, क्यों? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहाँ फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, वो वाला क्रॉस कंस्ट्रक्ट करो, मतलब वो पूछे आपसे ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट समझाओ, ठीक है? तो यहाँ पे अब अपना फिनोटाइपिक रेशियो निकालिए। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो? यस, आउट हियर, व्हाट इज गोइंग टू बी द फिनोटाइपिक रेशियो? दिस इज फॉर द फिनोटाइपिक, देयर विल बी 3 फीचर्स, तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ उसको। फिनोटाइपिकली रेड, can you see this, this is red, then pink, and lastly it is white. So 3 of the features are there, that is red, pink and white. See this now, red, pink and white, okay? So this is the phenotypic ratio, clear? अब red, pink and white में 1 is red, 2 are pink and 1 is white, ये हुआ हमारा phenotypic ratio। और अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो भी निकालना है तो क्या होगा, जीनोटिपिकली क्या रेशियो आएगा, जीनोटिपिक रेशियो में आप निकालोगे तो यू विल राइट अबाउट द जीनोटाइप्स हियर, सो दैट इज कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू आर इज टू सॉरी आर आर दिस पे, ओके? सो दैट इज आल्सो 1 is to 2 is to 1, so both the phenotypic and genotypic ratio are same, right? So because here the phenotypic and genotypic ratios are same, which were not so in the experiments given by Mendel, that is why this has been added as an exception. Why exception? First of all, an exception to the law of dominance, then it is also an exception to the conclusion made by Mendel after the monohybrid cross that the ratios will be differing, है ना? अगर आपको याद है टीटीज वाले क्रॉस में हमने जो किया था, जो मेंडल ने बताया स्टेम हाइट का क्रॉस, उसमें हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता था, 3:1। क्यों 3 आता था? क्योंकि वहां पे ये दोनों कंबाइंड थे, ये दोनों कंबाइंड थे। क्यों कंबाइंड थे? क्योंकि ये डोमिनेंट करेगा अपने आप को एक्सप्रेस, ऐसा मेंडल ने कहा था, क्योंकि उन्हों का फोकस सिर्फ एक ही प्लांट और उसके ही ऊपर सारी कंफ्यूजन ड्रॉ करने का था, समझ गए? दैट इज ये चीजें उन्होंने इग्नोर करी, हो सकता है उन्होंने देखी हो लेकिन ही हैज जस्ट इग्नोर्ड देम because they are seen in one or the two of the plants maybe, है ना? But ये concept जो है add on किया गया afterwards, and then this was finally crossed, the law of dominance was crossed, and this was removed from the law of inheritance list of laws of inheritance as conclusions, ठीक है? So this is one cross where both the ratios are similar, right? Where the dominating is not expressing completely, that is where incomplete dominance is taking place. Fine. Any question, any doubt to anyone from this cross?